Yeah, am I visible? Yes, yes, visible, visible. यार वॉइस there इको is हो रही है क्या? नहीं 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 फिलहाल नहीं हो रही है। ओके, Is there कंटिन्यू any कंटिन्यू issue? विद एसआरटी एंड एसडीटी. या श्योर। तो हाँ SRT में यार everyone must be through कि there are some set of 60 set of situations which you're supposed to solve, and it ranges from whether you have there's echo यार echo हो रहा है echo हो रहा है। यस, कैरी ऑन कैरी ऑन. हाँ तो you're supposed to solve 60 set of situations, and the situations range from whether you have to arrange a birthday party or you have to prepare for some sort of test or exam which is either related to your studies or some sport, and they go on till there's a very famous situation that you're walking with your girlfriend, and you're suddenly encountered from 10 people who are armed, and they ask you to leave your girlfriend and run away. So what do you do in this situation? So what I follow is I go about all the situations with basic logic. Ki what would I do in my general life? General life में if somebody does this to me, if I'm walking with any girl और उसके बाद somebody comes and points a gun, what can I यस यस, गो ऑन. So I follow the general funda that whatever I'll do in my general life, regular life, I write the same things down in the SRT. जैसे I was talking about the situation, तो उसमें I'll run away with the girl, and I'll first secure the girl, and later on I'll return and file a complaint with the police, and then try to find the culprits along with the police. Like I'll help the police however I can. So that is how I go about the SRTs, because यार अब हम हीरो तो है नहीं, तो फालतू में SRT में हीरो बनने की ज़रूरत है नहीं. Besides, you should utilize all your functional skills. Like I make use of my running as well as my swimming skills, or baki whatever achievements I have, to make use of your achievements. And one thing, that don't use a phone unnecessarily, because in majority of the situations you are given that you don't have to use the phone. Also, if you use the phone, so that is an opportunity lost as per me. Like people might have different takes on this, but because see, you are given an SRT to check what you will do in that situation, और सिचुएशन फ़ोन से तो कोई सी भी आप सॉल्व कर सकते हो ना. सो जनरली इट इज़ एडवाइजेबल टू नॉट यूज़ अ मोबाइल फ़ोन इन एवरी अदर सिचुएशन. जहाँ पे इट्स रियली नेसेसरी एंड यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, देन वेरी वेल गो एंड यूज़ द फोन and solve your problem. But besides that, try to solve it on your own, because यार whatever may be the case, फौज आज भी relies on humans more rather than technology, although we've been using technology to the best of our capability, but अभी भी ऐसा है. So they would like to see your skill, कि आप क्या कर सकते हो, how innovative you are with yourself in the situation. So it is better to go about like that in SRT. और SD में यार there is a simple funda, like now everybody who is preparing must go on and ask your teachers, your friends, your parents that what they think about you, और उसके हिसाब से write that. Besides this, one thing that I use in SRT is whatever they speak, I use the same exact sentences.
जैसे if somebody from my friends says a specific like peculiar thing, जैसे I've been told my friends कि when I start talking about something either I speak a little too slow, मतलब एकदम आराम से जैसे मोदी जी बोलते हैं हमारे, or else I go too deep into the topic and they lose interest. तो I use the same exact sentences because थोड़ा personal touch आ जाता है उससे. नहीं यार, there's someone अपेक्षा टाइपिंग सर यू मीन restriction of use of mobile in daily life. नहीं यार, I was speaking regarding SRT. SRT में I was saying that generally do not solve your situation using a mobile phone because you're supposed to display a certain set of qualities using which you are solving a certain situation. Yeah, so that's how I go about SD. Besides that, SD में time it properly or what I do is I write 3 to 4 positive points and then give one negative point because it is supposed to be balanced in the end. तो अब सब मतलब कुछ होते हैं बच्चे जो काफ़ी अच्छे होते हैं, पर बुराइयां हर किसी में होती है, छोटी 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 छोटी, और नहीं भी हो तो सामने वाले को तो दिख ही जाती हैं. बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर फ्रेंड्स, लाइक दे ऑलवेज वांट यू टू इम्प्रूव हाउएवर गुड यू आर, तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे. तो दैट इज़ माई वे. थोड़ा 3-4 पॉइंट्स पॉजिटिव लिखो और उसके बाद एक छोटा सा कुछ तो नेगेटिव भी दे दो, क्योंकि भगवान तो है नहीं हम. या So now we have completed the psychology part. यस. Let's start with electric. और लेक्चरेट के लिए यार फर्स्ट फंडा इज लाइक देर इज योर नॉलेज एंड देर इज योर कॉन्फिडेंस. बाकी तो इट्स जस्ट योर स्पीकिंग स्किल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन रीडिंग अप अ लॉट बिकॉज लेक्चरेट में जो जनरली देर आर 4 टॉपिक्स गिवन टू अ कैंडिडेट ऑन द स्लिप. 4 में से 3 टॉपिक्स आर वेरी वेल रिलेटेड टू द current scenario going on in the country and around the country, and the 4th topic is generally the easiest one ki my friend or my best friend or something like that, which anyone can speak on, जो ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए basically. So I used to go for the first or the second topic because they are the most difficult ones. Besides अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो why not go for the best. और उसके बाद लेक्चरेट में पीपल जनरली स्टार्ट स्टेटिंग ओनली फैक्ट्स. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट अ बेसिक आउटलाइन अबाउट लेक्चरेट टॉपिक्स. जैसे नाउ इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट एसएसबी, और तो अब जनरली हर कैंडिडेट को पता होता है यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन एंड अराउंड द कंट्री. सो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स. देयर आफ्टर यू कैन राइट 10-15 पॉइंट्स on all the topics, because now if like I have to speak on Indo-Pak relations, so a good candidate can go on for hours, but we have only 3 minutes to cover the topic. So you have to decide prior to the lecture what all you have to speak, and that is not possible in the 3 minutes that you are given to prepare during your lecturate test. Like it wasn't enough for me, might be enough for some people. सो आई यूज़ टू फॉलो दिस कि पहले से 10 से 15 पॉइंट्स प्रिपेयर रखो हर एक के बारे में, और उसके बाद आई कैन लाइक आई हैव अ फ्लो टू माई लेक्चरेट, बिकॉज फ्लो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वंस यू आर स्पीकिंग. तो आपके पास फ्लो होगा, यू कैन इनकलकेट सम नॉलेज, यू कैन इनकलकेट योर ओन लॉजिक इन टू योर लेक्चरेट, और उसके बाद प्रैक्टिस से हो जाता है यार. Okay, fine. लाइक आई यूज़ टू समटाइम्स प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. Okay. So that also works for candidates. Baki you can like there's this friend of mine Madhusudan. So he had joined a specific club in his college. There's this Toastmasters club in DTU. So he had joined that and he eventually became the president. So what they do is they come themselves together. मतलब they come together and they try out their public speaking skill and they try different concepts. How can they better it? Okay. So that is also a thing that you can do if you have the resources for it. Yes. Yeah. Now coming to group planning.
group planning exercise is a very important test because it is the only test where you are supposed to display your planning skills, right? So, group planning, first of all, be very clear that you understand what the GTO is saying. Okay. Thereafter, be very clear of the map, regarding the map, because many a times people forget where some city was, although the map is all the time in front of you. ठीक है, तो thereafter it is very necessary to be really prejudiced while you're deciding on the priority of the problems. Like, this is the way I go about it. I first of all decide the priority of the tasks that we are supposed to accomplish in whatever timeline we are given, and thereafter, once I've decided the priorities, I assign the resources, whatever resources we are given. ठीक है, तो उसके बाद जब मतलब मुझे प्रॉब्लम पता होगी और उसके बाद मुझे रिसोर्सेज पता होंगे, ओनली देन कैन आई गो ऑन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. Okay. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू लिस्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी वाइज. Thereafter decide what all resources are given to me and what are the hidden resources, because sometimes people don't account for the human resource that is given to them in the form of villagers, or in the form of some handyman kind of a person. जैसे कभी कभी क्रॉसिंग्स पे दिया होता है कि there is a post over there, या sometimes there are forest guards given to you, so some candidates forget to account for them. So ऐसे hidden resources भी होते हैं काफ़ी सारे GP में. It is very important to analyze, like utilize them also. Like, have a thorough view of the whole problem that is given to you. क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई और 50% ऑफ द वर्क इज़ डन, उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ कनेक्ट द डॉट्स कि कहाँ से कैसे जाओगे, बिकॉज पीपल कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग अबाउट अ प्रॉब्लम, राइट. कोई कह रहा होगा कि यार एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए 3 लोग भेज दो, और कोई कह रहा होगा कि 5 भेज दो. दैट डज नॉट मैटर वंस यू हैव डन ऑल दिस. लाइक, इट डज मैटर, बट वो काफ़ी सेकेंडरी चीज़ है. Yes, yes. सो ये आप लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, बिकॉज ऑल्सो इन द GP यू हैव टू कम टू अ कॉमन सोल्यूशन. Solution. इसमें फिर से आई यूज टू फॉलो द सेम टैक्टिक्स दैट आई फॉलोड इन द स्क्रीनिंग, कि ठीक है, GD में कंट्रीब्यूट वट एवर यू कैन, जिसका भी प्लान चल रहा है देयर इज़ नो इशू, क्योंकि आपने अपना प्लान आप डिस्कशन में बता सकते हैं व्हाट ऑल यू डिड, राइट. छोटा छोटा जब जैसे स्टार्टिंग से डिसाइड हो रहा है प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तब आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दो कि आई फेल्ट दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो ऐसे करके यू कैन गिव आउट ऑल योर प्लान्स, और उसके बाद लेटर ऑन यू कैन गो अबाउट डिस्कसिंग कि किसका प्लान सबसे ज़्यादा सूटेबल है. और इट इज़ बेस्ट कि आप अगर मिक्स प्लान बनाओ मेरे हिसाब से, तो बिकॉज एक ही इंसान को सारे बेस्ट आइडियाज़ नहीं आते जनरली, तो सबके सोल्यूशन में से कुछ यूज़ करके अच्छा प्लान बन जाता है. तो इट इज़ बेटर टू डू दैट. Okay. That's for the GP here. Yes. So now we have a ground command task. In a word frame date. Yeah, you are not audible. Yes. You are not audible. Am I audible now? Yeah. Yes. I was saying that this is about ground task. GPS, command task. But exactly happened over there. Students are going, and exactly happened what people have changed the is the red color, pure helping material, and on the red color. And red is out of bounds. And if there is blue or green, you can you cannot keep your You cannot keep the helping material, but you can stand on it. green, you can do both. But this happened at Rabat. You have to change like on red, you can stand and you can keep your
मटेरियल तो इनका था वो रेड कर दिया चेंज कर दिए तो स्टूडेंट के माइंड में पूरी चीज की so they मतलब candidate only one has followed the user and only he other all were because they didn't listen to properly. बढ़िया बढ़िया Yeah. यार सो फॉज फंक्शंस ऑन सम बेसिक रूल्स Yes. तो सबसे पहला होता है यू आर ऑलवेज सपोज टू बी फोकस, ठीक है। तो देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एसएसबी कि अगर कोई फ्रेशर भी जा रहा है ना तो ही वोंट फील लेफ्ट आउट ओवर देयर बिकॉज ऑल द ऑफिसर्स दे गिव सच गुड ब्रीफिंग्स ऑफ ऑल द टेस्ट कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको प्रॉपरली सब समझ आ जाएगा Yes. कि क्या चल रहा है आपके अराउंड, व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। तो this you are supposed to follow throughout the SSB कि whatever is being spoken to you, Yes. listen to it Yes. very properly, like pay proper attention to it whenever you are being spoken to, because देखो एक तो अगला ऑफिसर है, so you are supposed to pay attention, besides that वो आपके मतलब की बात कर रहा है, तो if you are absent minded over there it won't help you in any way, ठीक है। तो जनरली दे लाइक एनी असेसर दे डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग एंड जनरली GTOs डू दिस बिकॉज आज के टाइम पे देर आर अ लॉट ऑफ रिपीटर्स, ठीक है, एंड GTOs नो दैट इनको तो सब पता है पहले से बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फेस्ड SSB सम 3-4 टाइम्स मिनिमम। तो अब दे वांट टू मेक इट मोर चैलेंजिंग फॉर द रिपीटर्स बिकॉज फ्रेशर्स के लिए तो है ही ऑलरेडी। बिसाइड्स दिस माइट हैव हैपेंड जब ग्रुप में एक आधा फ्रेशर भी होगा बिकॉज फ्रेशर को तो कोई आइडिया होगा नहीं बट रिपीटर को आइडिया होगा ना रूल्स का। सो इफ द GTO चेंजेस द रूल्स द ओनस लाइज ऑन द रिपीटर्स। तो अब लाइक यू सेड द पर्सन हु फॉलोड द रूल्स ही गॉट रिकमेंडेड, तो वो तो होना ही था यार। दैट इज द फर्स्ट रूल, यू आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर गिवन। तो आप वही नहीं कर रहे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट रिकमेंडेड। Yes. Yes. तो कोई भी टेस्ट हो, बिकॉज इन माई फर्स्ट SSB दैट आई फेस्ड फॉर NDA इन 1 FSB देहरादून, सो देर आई अपीयर्ड फॉर द PABT। तो दिस हेल्प मी वेरी मच इन दैट बिकॉज बाकी तो अब पूरा प्रोसेस पता ही होता है बट PABT नोबडी टीचेज यू व्हाट PABT इज, हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउट इट, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन odd institution which was taking classes for PABT and that was also in Dehradun, but unfortunately I couldn't go over there and learn about it. So I had only one go like every other candidate, like you are only given one go at PABT. If you fail you are failed for life, if you pass you are passed for life, you don't have to appear for it again. So I was sitting there in the test room और वहाँ पे there was Wing Commander Karthik, I remember. So he explained the test so well with the help of those little caricatures of planes और काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। तो majority of us went through the exam यार, अच्छे से हो गया, almost 70% पास हो गए थे। तो once you are listening what the other person is demanding तो you can very well perform in any test। Yes. तो ये तो होना ही था। बिल्कुल. So Besides that the question regarding PGT, HGT, FGT, command task, यार बेसिक फंडा तो सबका सेम ही होता है। yes. बस what happens is in PGT you have 4 different courses to go through और उसमें you have your whole group with you, तो chances of participation are comparatively less. In half group task you have just one obstacle, like one obstacle course which you have to go through and you have half your group, like the group is divided. फिर full group task में it is the most similar test to FGT but उसमें you have to just negotiate with one obstacle. और command task में you are the commander so you are supposed to negotiate with the obstacle. Yes. And you can have 2 subordinates along with you. So this is just done so that everyone can have a go at participation to the best of their capability, क्योंकि उन्होंने आपको पहले पूरे ग्रुप में भी टेस्ट कर लिया, क्या पता आप नहीं परफॉर्म कर पाए हो बिकॉज ऑफ सम ऑड प्रॉब्लम, तो उसके बाद उन्होंने आपको हाफ ग्रुप में भी टेस्ट कर लिया। चाय पियेंगे सर? बिल्कुल चाय पियेंगे।
तो उसके बाद उन्होंने आपको फिर से फुल ग्रुप टास्क में, अब हाफ ग्रुप टास्क में जब एक बार आप परफॉर्म कर चुके हैं तो आपको कुछ आइडिया तो आ चुका होगा, लाइक हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउट द टेस्ट. उसके बाद वंस यू आर अगेन पुट इन टू द ग्रुप, दे लाइक ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल कि आप Yes. करो परफॉर्म. दे वांट यू टू परफॉर्म ओवर देयर. दे गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज. अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट लाइज ऑन यू. Okay. ठीक है, देयर आफ्टर द कमांड टास्क तो इट इज़ टोटली इन योर हैंड्स. तो इट इज़ अ वेरी लॉजिकल टेस्ट बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं यार. और आपको बस ब्रिज करना होता है गैप, आप कैसे भी करो. ठीक Okay. है, तो बिसाइड्स दिस, बस यार वहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो. गो अबाउट योर आइडियाज़ लॉजिकली एंड कीप स्पीकिंग आउट योर आइडियाज़. वट एवर यू फील कैन बी डन, टेल इट टू द होल ग्रुप कि जेंटलमैन आई फील वी कैन डू दिस, लेट्स डू दिस. और इफ़ दे कम अलॉन्ग विद यू और करते हैं, वेल एंड गुड. नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आइडिया देते रहो. तो जस्ट कीप ऑन गिविंग आइडियाज़. और ऐसे नहीं आपने एक आइडिया दे दिया तो अब तो GTO ने सुन लिया, आप रिकमेंड हो जाओगे. गिव एज मेनी आइडियाज़ एज यू कैन. बिकॉज देखो GTOs आर हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स यार. एक तो वो ऑफिसर्स हैं, उसमें भी दे आर वेरी वेल ट्रेंड. I had Yes. the opportunity to like be there for some time with Colonel Mohinder Pal Singh. Like he has been my mentor for the past 1 year. So he has been a senior GTO and GTO at 14 and 19 SSB Allahabad. So I had the opportunity to interact with him on a very personal level. तो वहाँ पे while he used to test us and all, तो यार what I observed is they are highly trained. मतलब he used to observe 15-20 of us very easily and he used to write individual points about each one of us, like what all we were doing during our performances. ठीक है, even in the GD. Okay. तो दे आर ऑब्जर्विंग द होल फील्ड कि कहाँ क्या चल रहा है. तो वट एवर यू से इज फॉलोइंग अपॉन हिज ईयर्स. ठीक है, तो कीप ऑन स्पीकिंग बट स्पीक लॉजिकल पॉइंट्स. डोंट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग कि किसी तो बंदे ने ऑनलाइन बोल दिया था यार बोलते रहो. तो हम बोलते रहते, रिकमेंड तो हो ही जाएंगे, वो भी तो हो गया था. प्लीज़ डोंट डू दिस. जस्ट कीप ऑन गिविंग लॉजिकल पॉइंट्स कि यार आई फील ऐसे ब्रिज कर सकते हैं, लेट्स प्लेस द प्लैंक ओवर हियर. बिसाइड्स जहाँ पे आइडिया ना आए हों वहाँ पे यू कैन आस्क समबडी एल्स टू गो फॉरवर्ड जो आइडिया दे रहा हो. बिकॉज आई लर्न दिस इन माई रिसेंट SSB that this is also a really good thing to do because we got stuck in our third PGT. तो उसके बाद the two of us who were inside the obstacle, we weren't getting any ideas, and the ideas which we were giving, the GTO wasn't agreeing with us. Okay. He wanted us to give more ideas or some different idea. So but there was one specific there was this chess number 11, I remember. He was speaking from the back कि यार please do this, but we were not able to understand. So my other friend, he just said कि यार I'm sorry, I'm unable to understand whatever you're speaking, so kindly you come inside and we'll fall back and you can implement the idea because I am unable to understand. So we came outside, he implemented the idea and eventually we got recommended. So just go about it logically. बस don't create unnecessary fuzz कि यार सब सामान मुझे दे दो, I'll do everything, because in the end it's a group activity. ठीक है, all you have to do is provide your ideas and make the group go forward. So that is the way to go about PJT, HJT, FGT, also the CT. Okay. Okay. So now you are left with only personal interview. So after taking questions. Yeah, So just briefly complete the first question. What things did first the has any other form like the handwriting must be understandable by the assistant and other things yeah, is breaking, your voice is breaking.
there's some don't resemble Major Jacob. He's a legend. Interview. Yeah. Personal interview. Yeah. So the personal interview. यार देखो the whole procedure of SSB. So the first basic thing is that you're supposed to know everything about yourself because it is a test of your personality. So once you know yourself thoroughly, only then you can represent whatever you stand for thoroughly during the 5 days. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोस्पेक्शन, लाइक नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ. आपने बचपन से क्या किया, क्यों किया, एंड व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू गॉट आउट ऑफ इट. ठीक है, दैट इज द वे टू गो अबाउट द SSB as well as the personal interview, specifically the personal interview, because psych में there is a chance that you can write something which you are not. ठीक है, because you are not interacting with the assessor, you are writing your thoughts down, so you can modify your thoughts and you can write them down. Okay. Also in GTO you don't interact with the GTO much, he just interacts with you for 10 to 15 minutes at max during your command task. Yes. ठीक है, तो but the personal interviewer he interacts with you for at least 1.5 hour. ठीक है, tops. So besides he is a really experienced person again, and he will strip you down, he will strip you naked, and he'll get to know whatever he wants to get to know through your own mouth. So it is better to know yourself, know whatever you did. और मतलब अभी जैसे काफ़ी सारे सिनारियोज होते हैं यार, एंड वी डोंट जस्टिफाई देम प्रॉपरली. तो जो गलतियाँ हो गई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लाइक इफ़ आई डिडंट स्टडी फॉर माई कॉलेज एग्जाम्स, बहुत बड़ी गलती तो नहीं है ना, बिकॉज इन दी एंड आई क्लियर्ड द CDSE, और उसके बाद आई एम सिटिंग इन द पर्सनल इंटरव्यू रूम, सो आई एम एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड बाय द इंटरव्यूअर एज वेल. बट हम उसे ढंग से जस्टिफाई नहीं करते कि क्योंकि कुछ तो कारण होगा ना, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो आई मस्ट बी अदरवाइज ऑक्यूपाइड, या आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एट दैट टाइम. ठीक है, तो प्रॉपरली आपने जो भी गलतियां करी उन्हें प्रॉपरली जस्टिफाई करना ज़रूरी है. बिसाइड्स यू नीड टू गिव हिम समथिंग सब्सटैंशियल दैट यू आर डूइंग इन टुडे टू ओवरकम ऑल दोज इशूज़. ठीक है, वट एवर इशूज़ you are facing in your personal life as well as professional life, or whatever issues lie with your personality. क्या चल रहा है, ठीक है. तो दैट इज़ द वे टू गो अबाउट पर्सनल इंटरव्यू. पहले तो मेक अ लिस्ट ऑफ लाइक PIQ जो होता है, इट इज़ द की टू योर SSB इंटरव्यू. So whatever you write in PIQ, write it very deliberately because you will be asked questions regarding that only. अब ऐसा नहीं होगा ना कि आप अगर उसमें PIQ में इंटरेस्ट में और हॉबीज़ में लिख रहे हो दैट आई लाइक रीडिंग बुक्स, और वो आपसे पूछेंगे अच्छा टेल मी योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी. इट सेल्डम हैपन्स. So whatever you write in the PIQ, be ready to represent it to the best of your capability. If you are writing that you are a sports person and you are carrying some 80-90 odd kilos on your body with a frame of 5'11" or even 5'5", so that does not reflect that you are a sports person unless you are into sumo wrestling. So that is not the way to go. So whatever you write it very deliberately, and yeah, like you said, it should be really clear because आपको अपनी बात पहुंचानी है, उन्हें ज़रूरत नहीं है आपकी. ठीक है, यू आर जस्ट वन ऑड कैंडिडेट और उनके पास और 60-70 और हैं, और टेक्निकल एंट्री या NCC एंट्री आपकी, तो उनके पास 200-300 और कैंडिडेट्स हैं आपके पीछे खड़े हुए. सो यू शुड रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी. तो राइट योर PIQ इन अ वेरी लेजिबल हैंड. और उसके बाद लाइक there was this problem with my PIQ that I faced, that I used to fill it too much. मतलब अब स्पोर्ट्स में जैसे I have represented my school and college in 4-5 different sports, so I used to write all of them. और I have so many curriculars, I used to write all of them. तो अब कभी कभी क्या होता था, I used to forget 1 or 2 word, तो it used to give a bad image कि the PI used to
पर्सनल इंटरव्यू आई यूज टू फील दैट यार कहीं ब्लफ तो नहीं कर रहा होगा, तो माई इंटरव्यूज यूज टू लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। और फिर क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे उन पे, कॉन्फर्मेटरी क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं हम, तो दे यूज टू बी अ लॉट मेनी ऑफ देम। तो कहीं ना कहीं तो यार थोड़ा बहुत फंबल कर ही जाएगा ना इंसान। तो लिखो वही जितना आप संभाल सकते हो, ठीक है, रायता उतना ही फैलाओ जितना आप समेट सकते हो। तो वट एवर यू राइट बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग योर PIQ। और ऐसा कुछ नहीं होता यार, आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिकमेंडेड राइटिंग जस्ट वन हॉबी। ऐसे 3-3 4-4 भरना कंपलसरी नहीं होता। और जो आप ज़िंदगी में कर रहे हो वो वहाँ दिखाओ PIQ में। बिकॉज आई हैव दिस वन फ्रेंड, ही गॉट रिकमेंडेड आफ्टर राइटिंग दैट आई वॉच एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एज अ हॉबी। बिकॉज जनरली पीपल एडवाइस कि ये सब मत लिखो, आप गेमिंग करते हो आप गेमिंग मत लिखो। लाइक इवन आई वोंट एडवाइस आप लिखो, राइट इट एट योर ओन रिस्क, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिकमेंडेड विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो उनका ऑब्वियसली उसके लिए रीजनिंग काफ़ी अच्छी होगी ना। तो वट एवर यू राइट हैव अ प्रॉपर रीजन फॉर इट and a reason behind it, why you're doing that, how is it helping you develop as a person and carry your life forward, or why are you doing it specifically, how is it supposed to help you in short term and the long term, how is it developing you physically, mentally as well as spiritually. So I followed all these dimensions Okay. for the PI. फिर भी मेरा PI खराब हो गया था। Okay. तो better be prepared well for the PI. Right. So we have done with personal interview. Now Yeah. come to conference now. Conference में Yeah. वैसे कुछ नहीं. If you are यार the मेरी तो बहुत खास हुई थी कॉन्फ्रेंस इस बार। बताइए क्या खास था conference? सो लाइक आई सेड मेरा पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी ख़राब हो गया था। और लाइक आई मेस्ड अप in one or two odd places. I forgot questions during my like the CIQs. और उसके बाद what I did during the general knowledge round is वहाँ पे मैंने टॉपिक गलत सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, and I was unable to answer 3 questions that he asked me. तो अब मुझे पता था ऑलरेडी ये ख़राब हो चुका है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्फ्रेंस। तो सब कुछ प्रिपेयर किया मैंने। But what happened is now my personal interview was the commandant of Bhopal, SSB Bhopal. Okay. So, but in the conference he didn't speak to me. I was being spoken to by the other interviewer of the board. He was a colonel with Gorkha Rifles, Colonel Nair. So I went in. He asked me to sit down, and I was surprised कि why isn't Brigadier sir speaking to me? और ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब it doesn't happen generally. तो कुछ नहीं, I sat down and then he started कि अच्छा you're coming from Pune. I said yes sir. तो मुझे लगा कि चलो हो गया बंटाधार, अब रेगुलर क्वेश्चंस होंगे और भेज देंगे तो घर। तो बट अचानक से ही पुट अप SRT टू मी कि अच्छा you're let's imagine you're done with all the process over here, और इसके बाद you're going back home, ठीक है, and you're in the train. So what happens is one person comes into your carriage, और carriage में you're only 2 people, you and the other guy. So he comes over to you, he gives you a certain bag, and what he says is, yeah, I'll be back from the washroom in a jiffy, and you kindly look after this bag for me, and he goes out. So thereafter he does next hour, ठीक है। उसके बाद on the next station the police shows up and they arrest you for possession of drugs which were present in that specific bag. So how will you prove your innocence to the police? तो अब मुझे पता चल गया कि ये अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, although I messed up in my personal interview, but I knew my psych and GTO were really good. तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि चलो अब अगर कॉन्फ्रेंस संभाल ली तो भी हो सकता है शायद काम, क्योंकि SRT तो आई गई है ऑलरेडी, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है। तो आई टुक माई टाइम एंड देन आई आंसर्ड दैट सर आई विल शो देम ऑल माई डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, द SSB सेंटर, एंड यू कैन कन्फर्म विद द SSB सेंटर, दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, दिस इज माई कॉल अप लेटर, and
So therefore I do not indulge in such activities, ये ड्रग स्मगलिंग वगैरह जो है. Yes. तो what he said is ठीक है, but that is not substantial enough ना. So पुलिस नहीं मान रही, you know the Indian police. What else can you do? तो अब यार अब मैं सोचने लगा तो cheers for the mustaches. तो अब मैं सोचने लगा कि और क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में. तो देन आई टोल्ड हिम कि ठीक है सर, I'll ask him to kindly look at the CCTV footage at the SSB center at the railway station. ठीक है, at the time of my leaving SSB center as well as arriving at the railway station and leaving the platform into the train. तो उसने क्या बोला कि यार कॉल आ रहा है कोई. तो उसके बाद कैमरा खराब है. मैंने ये बोला हाँ नहीं कॉल आ गया. हाँ, तो व्हाट ही सेड इज कि अच्छा यू विल डू दिस. तो मैंने बोला सर हाँ, इससे मैं दिखा दूंगा कि मेरे पोजीशन में बैग तो था ही नहीं. तो अब मुझे लगा मैंने सॉल्व कर दिया अच्छे से, मैं तो हो गया रिकमेंड यहीं पे. तो ही सेड कि यार यू नो दिस इज इंडियन पुलिस. मैंने कहा यस सर. और उसके बाद बोले कि इसीलिए तो आप परफेक्ट एलिबाई हो ना फॉर दिस क्राइम, बिकॉज यू हैव ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स विच विल सेव यू इन टाइम दैट यू गेट कॉट. तो इसलिए तो आपको यूज़ कर रहा है वो स्मगलिंग गैंग. अब तो मैं क्लीन बोल्ड हो गया भाई, अब कुछ समझ ही नहीं आया. अब ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था. तो फिर से उसने बोला और कुछ बताओ, और क्या कर सकते हो. तो मैंने कहा सर फिर तो आई विल सरेंडर. और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क देम टू काइंडली गो फॉर DNA चेक्स. ठीक है, आई विल आस्क देम टू टेक ऑल द DNA एंड ऑल द फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द अदर बैग which contains the drugs. Also sir, because I have been using this bag जो मेरा suitcase है and the other handbag since past at least 7 days. तो उसमें obviously मेरा कोई ना कोई DNA fingerprint होगा, इधर मेरी dead skin होगी या मेरा hair होगा, मेरे बाल होंगे कहीं पे गिरे हुए. ठीक है, या फिर मेरे fingerprints तो होंगे ही होंगे. बट ये जो बैग है जो मुझे कोई और देके गया है जिसे मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. So I'll surrender and I'll ask them to do a thorough check. और उसके बाद they'll find nothing on me and they'll like declare that I'm innocent and they'll leave me. Yes. तो ये हुआ. तो यहाँ पे he seemed pretty convinced. तो उसके बाद he said अच्छा ठीक है. तो now Siddhant, tell me how many friends did you make over here? अच्छा नहीं, हाँ, he said अच्छा ठीक है, ये तो बाद की बात है that you will surrender and all. Tell me something that you can do right now in the situation to solve it. So now I was understanding that he wants me to run away. कि मतलब मैं कुछ तो ऐसा उल्टा सीधा कर दूं जिससे इन्हें मुझे रिजेक्ट करने का मौका मिल जाए. तो I didn't do that. और मैंने फिर भी थोड़ा सोचा and I told him sir, in that case all I can do right now is I can call up somebody credible who can vouch for me that this kid is innocent और ये ऐसे ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है and I vouch for this kid. तो kindly leave this guy. तो now I was going for my father and my uncle. So my father is retired from the Indian Air Force and my uncle is a serving colonel in the Indian Army. तो अब वो अगर पुलिस को बोलेंगे कि हमारा बच्चा है और he does not indulge in such activities, तो पुलिस मान जाएगी obviously. तो but he asked me he didn't give me the opportunity to say this and he asked me instead अच्छा how many friends did you make over here. तो मुझे लगा चलो बला टली. तो I said sir, I made friends with everybody. और everybody in my group, in our batch, also some NDA guys who have gotten recommended in the previous batch. So he said अच्छा. So now tell me one thing Siddhant, that you are in the same situation and you call up one of these guys. ठीक है, who will be the person that you call? तो now this Madhusudan guy, we had become really good friends. ठीक है, तो I took his name, that sir, chest number 8 Madhusudan Mansal, I'll call him up and he'll vouch for me in front of the police. Also sir, chest number 16 Shaurya Gaur, he'll also vouch for me because he was from Delhi and we had met on the platform and we had been speaking throughout the process. तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी. And luckily what happened in Madhusudan's conferences, he was chest number 8, I was chest number 10.
So in the GTO came to know that we were good friends, ठीक है, somehow. और बिकॉज वी वर सपोर्टिंग ईच अदर रियली गुड थ्रू आउट द GTO. और उसके बाद कॉन्फ्रेंस में व्हाट हैपेंड इन हिज कॉन्फ्रेंस इज ही वाज आस्क्ड बाय द GTO हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ओवर हियर, एंड ही टुक माय नेम कोइंसिडेंटली. आई केम टू नो दिस आफ्टर माय कॉन्फ्रेंस. तो ही टुक माय नेम. thereafter he was asked ki acha tell me 2 qualities that you have learned from him, etc. So he named some things or his conference got over. Thereafter in my conference I was asked this question and I took his name. तो वो एक थोड़ा फायदा हो गया, थोड़ा मतलब उन्हें लगा कि जेन्युइन आदमी है, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहा है. तो उसके बाद when I took their name तो he said कि अच्छा what they'll do then. मैंने कहा सर they'll vouch for me and they'll speak to the police और हो जाएगा. फिर बोले अच्छा now सिद्धांत what will you do if one of them is caught in the same situation. तो मैंने कहा सर अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी यार, यहाँ पे आई आंसर्ड इमिडिएटली. लाइक अभी तक तो मैं थोड़ा सोच के बोल रहा था 5-6 सेकंड लेके, बट वंस दिस क्वेश्चन केम आई सेड इमिडिएटली सर आई विल डू द सेम फॉर देम, क्योंकि दोस्ती की बात है भाई. और ही वाज ऑब्वियसली टेस्टिंग मी. So I said this and he was like what will you do. I said sir I'll speak to the police, I'll get somebody from my reference to speak to them also, somebody who can vouch for them, somebody in a position of power. और उसके बाद I'll even ask the JCO sir who attended us over here to vouch for them. ठीक है. तो वहाँ पे he smiled and he said नहीं यार you're some 200-300 odd kilometers away from here, why do you want to disturb the JCO साहब, let him do his work ना. तो अब यहाँ पे आई ऑल्सो स्माइल्ड. आई सर ठीक है सर, तो आई विल वाउच फॉर देम माई सेल्फ एंड आई विल आस्क समबडी इन द पोजीशन ऑफ पावर टू वाउच फॉर देम एज वेल ऑन माई गारंटी. तो ही सेड अच्छा ओके. So now there was this other problem that I faced in my personal interview. These are my education. So during my graduation my marks slipped a lot. I got a lot of backlogs and whatnot. So there was a major question mark over there कि यार एजुकेशन आप बोल रहे हो, इतनी पढ़ाई करी, ये करी वो करी पिछले 2 साल में, और ग्रेजुएशन में तो आपके मार्क्स हैं नहीं. सो लकीली फॉर मी इट सो हैपेंड दैट आई हैव गुड मार्क्स इन माय मास्टर्स. ठीक है. तो आई वाज एबल टू जस्टिफाई एंड अकाउंट फॉर द लॉस्ट मार्क्स इन ग्रेजुएशन थ्रू आउट माय मास्टर्स. But here I have tried to cover up for it to the best of my capability. So thereafter I told him all my schedule. Like पहले तो बहुत आलसी था मैं, अभी भी हूँ, पर पहले कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करता था, कुछ नहीं करता था. बट अभी सिंस पास्ट 2 years प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहा था, सब काम अच्छे से कर रहा था, काफ़ी वेल मैनेज लाइफ चल रही है बेसिकली. तो मैंने सारा कुछ उनको बताया, पूरा प्रोसेस की सर ऐसे प्रिपेयर करना शुरू किया. देर आफ्टर आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 3:30 AM एंड उसकी वजह से आई यूज़ टू गेट सम एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूरिंग माई डे जिसमें आई यूज़ टू फोकस ऑन माई सेल्फ. बिसाइड्स आई हैव बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन माई सेल्फ. तो ये सब करके मैंने मतलब मेरा पूरा प्रोसेस उन्हें बता दिया कि सर आई एम कमिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड दिस प्लेस फॉर दिस SSB. ठीक है. और मैं सर इतना पुटेंट डाल के आ रहा हूँ, बाकी चीज़ आप देख लो. तो कहानी क्योंकि उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है यार मेरे हिसाब से. तो बिल्कुल क्योंकि तभी उन्हें पता चलता है यार कितना क्या चल रहा है. एंड आई बिलीव उसी की वजह से आई गॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बाकी तो आई हैड मेस्ड अप अ लॉट ड्यूरिंग माय पर्सनल इंटरव्यू. और बाकी भी GTO में भी थोड़ा मेसअप हो गया था, थोड़ा 1-2 जगह ग्रुप डिस्कशन में जामिया का नाम थोड़ा ज़्यादा निकल गया था मेरे मुंह से. CA पे बेस्ड कुछ तो ग्रुप डिस्कशन था, तो 2-3 बार मेरे मुंह से निकल गया. तो ही मस्ट हैव फेल्ट कि कहीं थोड़ा बायस्ड ना हो कास्ट ये रिलीजन वगैरह पे. सो मेरे लेक्चरेट में भी फिर लेक्चरेट केम अपॉन रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी. तो वहाँ पे ऑल्सो आई डिस्प्लेड कि यार ऐसे मीडिया कभी कभी फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल इन द जामिया केस, तो मेरे GTO में ऐसा हो गया था कि लेक्चरेट में 3 मिनट के लिए मैं बोल चुका था ऑलरेडी एंड देयर आफ्टर द GTO स्टॉप्ड मी कि अच्छा प्लीज स्टॉप एंड आंसर 1 क्वेश्चन, जो कि मैंने कभी किसी के साथ होता नहीं सुना, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है मेरे हिसाब से. तो ही आस्क्ड मी कि अच्छा नाउ टेल मी हाउ डिड द मीडिया मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स इन द जामिया मिलिया केस. तो आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम. उसके बाद ही सेड अच्छा ओके प्लीज़ गो ऑन. तो मेरा लेक्चरेट 3 मिनट नहीं 4 मिनट 4.5 मिनट का हो गया. फिर
बिकॉज अब उन्होंने बोल दिया प्लीज गो ऑन, तो आई हैड टू कीप ऑन गोइंग ऑन। उसके बाद और 1 मिनट उन्होंने बुलवाया, फिर बेल बजाई। Okay. Yes, go on. हाँ, तो व्हाट हैपेंड इज बेल बजा तो उसके बाद इवन इन माय कमांड टास्क ही स्पोक टू मी अराउंड फॉर 15-20 मिनट्स रिगार्डिंग दिस होल सीए सिनेरियो एंड एवरीथिंग। तो ये सब भी थोड़ा हो गया था इशू। तो उसकी वजह से फिर से मुझसे काफी क्वेश्चनिंग हुई कि पिछले 2 साल क्या क्या किया आपने, ये सब, और आपके ग्रेड्स तो है नहीं। फिर अच्छा, यू फोकस अ लॉट ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, सो टेल अस some 2 things that you have learned during your stay over here। तो ये भी पूछा गया मुझसे, तो आई वॉज एबल टू हैंडल दिस वेरी गुड। और उसके बाद देयर वाज समथिंग दैट टेल अस 2 things that you would like to inculcate in your life after this, जिसकी वजह से मतलब you feel you have been missing out on that, how you would like to improve yourself, tell us 2 ways more। तो ये भी चला फिर थोड़ी देर। तो इस सब के बाद माय कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड, Okay. और उसके बाद रिजल्ट तो अच्छा ही आया Yes. So basically, किस्मत से। you was border case. That's why you Yeah, got long. Yeah, But yeah. the thing Sir, was, my tackled conference went right- for very long. Yes. You tackled in a right way. You gave very convincing answers. That's why you will be joining soon IMA. Okay. Yeah, see here, the whole process is about the presence of mind, ठीक है? How well you are tackling the situation and how good you are able to answer, because unknown questions तो आएंगे ही यार, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। सो ऑल्दो आई फेल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय पीआई, बट कॉन्फ्रेंस में काफी अच्छे से कवर अप कर लिया वो चीज को। Yes. Okay. So now we will wind up this session, and those who are watching us, please ask your questions. Please ask genuine questions. Yes, sir. Okay. There is a question from Apeksha. What did you answer? What did I answer to what? Apeksha, please write your question properly. बॉटल में पानी है श्रीकांत। थोड़ा बीमार हूँ यार मैं, थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है, तो गर्म पानी पीना पड़ रहा है। तो सर कब की डेट आई है, कब ज्वाइन कर रहे हो IMA? यार अभी ज्वाइनिंग लेटर तो अभी तक इशू हुए नहीं है, दे विल बी इशूड समटाइम इन दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक, तो तब पता चलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली फिलहाल 21 सितंबर के आसपास की बात चल रही है, तब हो सकती है। सर आपके साथ रोहन उप्पल भी जा रहा है, माय बैचमेट। हाँ, रोहन उप्पल भी जा रहे हैं। हाँ, बात हुई हमारी काफी। बताओ। उसका मेडिकल पुणे में ही था उसका। ओके, ग्रेट। हाँ, एंड लकीली रविराज एंड अद्वैत का भी रिव्यू चल रहा है। रविराज इज ज्वाइनिंग अच्छा। इंडियन नेवल एकेडमी। वो भी मतलब जम्मू कैंट, APS जम्मू कैंट। अच्छा, ये भी जम्मू कैंट के बच्चे हैं? हाँ सर, जम्मू कैंट के ना अभी हाल फिलहाल में कम से कम 7 से 7 स्टूडेंट्स गॉट रिकमेंडेड। 7 बहुत बढ़िया है, तो दिस इज रियली गुड। और आपको विशाल चौधरी इसी कोर्स के लिए? हाँ, चौधरी यार, आई हैव बीन इन टच विद हिम सिंस आई लेफ्ट जम्मू, तो चौधरी का तो पता चल गया था। सेम कोर्स के लिए नहीं, बट मतलब इन द लास्ट 4 मंथ्स सुशेन ने तो जनवरी में ही ज्वाइन कर लिया था नेवल एकेडमी। वो टेक्निकल एंट्री से गया था नेवी में, सब लेफ्टिनेंट सुशेन शर्मा नाउ, ही गॉट कमीशन नाउ। अरे नाइस। यस, एंड रविराज, अद्वैत, रोहन, सुशेन, ये एक साथ हो गए 4, एक आप हो गए 5, एंड सिद्धांत खन्ना, he is also खन्ना just passed out from INA, I guess. Yes. So there are near about 7 to 8 candidates who recently got recommended. 2 of them got commissioned, and soon you all will also get commissioned. इंशाल्लाह यार। अरे यहाँ पे also my course-mates have joined in. Okay, बीच fine. में। Great. Welcome. रोहन भी आया था बीच में। There's Tirath, Captain 07. Okay. So Muskan have asked,
Sir, what did you learn from stay over SSB, and what would you learn further? अच्छा, regarding those two questions. तो यार once he put up these questions, तो अब मुझे पता था that where I'm coming from और मैं क्या क्या कर रहा हूँ. तो for the question that what did you learn from the stay over here, तो first of all अब मेरे पास एक ही proper इसके लिए ये था कि सर मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो ये मुझे सेकंड पॉइंट बोलना था बेसिकली, और पहला पॉइंट मैंने कुछ भी बोल दिया था फिर कि सर आई लर्न दिस दैट आई नीड टू लाइक फोकस अ लॉट ऑन माय जनरल नॉलेज, बिकॉज अब मुझे पता था आई मेस्ड अप इन माय पर्सनल इंटरव्यू. तो मैंने वो बता दिया यहाँ पे क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी, देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग इट एनी मोर. Exactly. So I told him, sir, I learned that I need to focus more on my current affairs because थोड़ा ब्लंडर हो गया वहाँ पे. ठीक है, I need to revise more so that मैंने मतलब बेसिकली उन्हें सोल्यूशन भी वहीं बता दिया that sir I have already thought about this और मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल चुका हूँ. ठीक है. No यार, coming from a very poor background does not lead to rejection. Besides, I know for a fact that you are not poor. ठीक है, your dad drives a BMW. Yeah. So Rishabh Yadav has asked, sir, will it lead to termination of candidate if he underwent LASIK? LASIK surgery. Please do answer, sir. नहीं यार, kindly read this notification once because LASIK के लिए there's some criteria. If you have underwent LASIK surgery and your recovery period is over, then you can very well appear for the medical test. There is no rejection for LASIK. Plus, provided you have to be 18 plus for that. Yes. हाँ, तो regarding the last question, so second thing I told him, sir, second thing that I learned is if I go on working on the same pace and with the same principles that I've set for me, तो sir आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं. एंड आई सेड दिस इन हिंदी ताकि थोड़ा फील आ जाए उनको कि सर आज नहीं तो कल पहुंच जाऊंगा मैं. आई विल अचीव द लाइफस्टाइल दैट आई हैव सेट फॉर मी, कि मतलब इस एज तक ये अचीव करना है लाइफस्टाइल, दैट आई हैव टू अचीव दिस लेवल ऑफ फिटनेस, दिस लेवल ऑफ मेंटल पीस एंड दिस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन माय लाइफ. ठीक है, तो इस तरह से मैंने वो आंसर किया. एंड द टू थिंग्स दैट ही सेड, जो आप इम्प्रूव करोगे, तो मैंने कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो आउट अ लिटिल मोर, क्योंकि 2 साल से काफी कुछ कर रहा हूँ मैं, तो उस चक्कर में आई हैव बीन मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन विद माय फ्रेंड्स. मतलब जितना पहले करता था उतना नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी. तो आई हैव लर्नड दैट नाउ आई कैन चिल अ लिटिल बिकॉज दिस एक्सपीरियंस फॉर द प्रीवियस 5 days हैज बीन रियली गुड. तो आई विल बी गोइंग अ लिटिल मोर आउट विद माय फ्रेंड्स. ठीक है, और दूसरा यार मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट इन्हीं लाइंस पे कुछ तो था. तो बेसिकली मुझसे जो गलतियां हुई थी मैंने वो यहीं कर ली थी. पार्टी यार, ये कोविड ने सिचुएशन खराब कर रखी है, तो जैसे ये खत्म होगा फिर पार्टी करेंगे. बिसाइड्स आपके साथ तो एकेडमी में पार्टी करेंगे. One candidate is saying, Same so answer. basically your honesty lead you to recommendation. टोटली यार, टोटली. मतलब मैं जो भी कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, मैंने सब बता दिया था. बिसाइड्स अब देखो, ऑनेस्टी इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव. मतलब यू शुड नो कि कितना बताना है, क्या बताना है. ठीक है, Exactly. यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. ऐसा नहीं कि आप सबके सब बता दो, कि जो गलतियां भी कर रहे हो सब बता दो कि सर मुझे तो नींद बहुत आती है, मैं उठ ही नहीं पाता, इसलिए मैं रिटर्न में भी फेल हो गया था पहले. ये सब थोड़ी बताना होता है. बिल्कुल. या मैं सर पार्टी कर रहा था इसलिए ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं आया, आप ये सब बोलोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड. Exactly. क्योंकि जो कल पार्टी कर रहा था वो कल भी पार्टी करेगा. Yes. So sir, this was your which conference? मतलब 4th number, 5th number? ये हाँ, 4th SSB 4th कॉन्फ्रेंस. 4th conference. Okay. Great. Okay. पिछले 3 कॉन्फ्रेंस आउट थे, 1 फॉर NDA, 1 फॉर OTA, 1 फॉर IMA. Okay. और उसके बाद दिस वाज द 4th वन. Okay. Great sir, great job. And थैंक्स यार. so anyone want to ask any other question, or should we bind up the session? Please ask. हाँ यार, टोटली ऑनेस्टी इन द सेंस दैट आई अग्रीड. हाँ यार, अब
देखो यार, हम गलती ये भी कर देते ना एज अ कैंडिडेट, हम सोचते हैं सामने वाला ऑफिसर है ठीक है, पर हम बेवकूफ बना लेंगे उसको। तो या आप बेवकूफ बना नहीं सकते यार एक्चुअली। अब बिल्कुल। बेवकूफ ऐसे आप बना सकते हो कि अब जैसे आपकी कोई हॉबी है ना, वहां आप यस, थोड़ा बना सकते हो। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे कुछ चीजें आप याद कर सकते हो अगर हॉबी के बारे में आपको नहीं पता है। बट अब जो चीज आप कर नहीं सकते, जैसे अब मैंने कर दी थी गलती और मैं जाके बोलता नहीं सर मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, हो, ठीक है, तो मैं ही बेवकूफ हूँ यार उस केस में। यस यस, यू राइट। तो इसलिए फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, जस्ट वॉक वॉट एवर यू टॉक, तो बढ़िया हो जाता है फिर। यस यस। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट पुणे? डार्लिंग, यू आर द बेस्ट थिंग अबाउट पुणे। ओके, ग्रेट। So I think, sir, you पुणे इज अ have नाइस सिटी। completed your masters. हाँ There. यार, अभी फिलहाल आई एम ड्यू टू अपेयर फॉर माई फाइनल एग्जाम्स, तो काफी Okay, लटक okay, गया है वो। okay. Because recently the decision was given by Supreme Court that exams will be held as per the wishes of UGC. जी। तो फिलहाल ये चल रहा है कि पुणे यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टिंग एग्जाम्स इन द वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ओ, ऑफ अक्टूबर। सो इफ फिर दैट हैपन्स तो थोड़ा हो जाएगा सीन एग्जाम्स का। पता चलो। नहीं, अब देखेंगे क्या होता है। नहीं सर, बट जो एम था वो तो अब मिल ही गया है, अब तो। अब वो तो हो गया यार, मास्टर्स तो क्या फिर से कर लेंगे। सही बात है, वो तो फौज ये करा तो देगी। चलता है। और क्या, एक मास्टर्स तो करनी है अभी फौज में। क्वेश्चंस हो तो फटाफट ले लेते हैं। यस सर, आई थिंक वी शुड बाइंड अप नाउ। या सर, श्योर। लाइक कैसे सही होगा? Like, what exactly is asking? बट आपको बट यू आर आस्किंग नॉक मी। ये, अरे 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 भाई साहब, चौधरी साहब। एवरीबॉडी एट अटेंशन, जीसी विशाल चौधरी। अच्छा, बोलते नहीं है प्लीज। ये सौभाग्य की बात जय है हिंद आज। सर, जय हिंद। कैंट, सौभाग्य, जम्मू बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। जम्मू कैंट के एलुमनस यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे यस फ्यूचर ऑफिसर्स। भाई वेलकम साहब, सर, वेलकम। बहुत सही यार, बहुत सही। हम्म, तो यार सही हाँ, है। बोलेग्स बेसिकली नॉक नीज जैसे अंदर को होता है ना, हमारे ओके ओके। नीज टच करने लग जाते हैं। तो बोलेग्स में होता है कि नीज से काफी ज्यादा डिविएशन आ जाता है, मतलब नीज के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा आ जाता है। मतलब मुझे इतना ही पता है, बाकी ये सब इशू आया नहीं कभी। यस यस। बेसिकली जो यार अच्छे से खेल कूद रहे होते हैं ना बचपन से, उन्हें नॉक नीज और ये सब इश्यूज होते नहीं है जनरली। तो खेलते यस। कूदते रहो, बाकी एक बार सिविल में चेकआउट करा चेक पूरा करा लेना चाहिए, चेक वगैरह, वर्कआउट रेजिम